Hello everyone, I am CA Sonali, and in last lecture we have covered everything basic about journal entry. So today we are starting with lecture number 2 for forward things, or I would say further things about journal entry, and we will solve for more questions from ICS study module. So in last lecture we have learned about the basically rules of accounting, that is what all golden rules of accounting. So we have seen that there are three types of account: real account, personal account, and nominal account. So real account relates to all asset of the business. So the rule of real account is debit what comes in, जो आएगा वो debit, credit what goes out. So it is applicable to all the cash of the all the assets of the business, like cash, land and building, plant and machinery, furniture, fixture, trademarks, or other asset side of the business. Second, we have seen that there is another account which is called as personal account. So here I am explaining personal account. See, in personal account we have seen that there is a three types of person. First is a natural person, second is a artificial, or you can say legal person, or third is a representative person. So natural person like you and me, artificial or legal person I would say Reliance Industries, Tata Industries, or any other business, like whoever the business or the businesses, as per the law they have given a title of the person, like they covered in the person's definition. And third is a representative. Example, Reliance Industries is a person according to the, it's come under the artificial persons definition. So Reliance Industries cannot go anywhere or attend meeting. So if I attend meeting of the Reliance Industries on behalf of Reliance Industries, then I would be called as a representative person of the Reliance Industry. So this is what personal account is. Personal account is applicable to the persons like artificial person, natural person, representative person. Persons like Aman, Ram and Sons, this all is all example of personal account. And rule of the personal account is debit the receiver, credit the giver. जो भी रिसीव हो रहा है उसको डेबिट करो, जिसको भी जो भी जा रहा है उसको क्रेडिट करो. एंड थर्ड अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट इज एप्लीकेबल टू ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस. And the rule of nominal account is debit all expenses and losses, credit all income and gains. So expenses like a salary, wages, purchase, sales commission, purchase commission, this all expenses is. So this is what all recap of the last lecture is. Now today we will proceed further, and before doing some questions I wanted to tell you some concept. This concept you should clear from your side. So now imagine your business, you are a big business like example Reliance Industries. Now Reliance Industries have a crores of transaction in a daily basis. Say goods receive rupees 5000 just for 1 minute, or I would say 1 second transaction it is. So goods receive rupees 5000, goods return rupees 200, goods sale rupees 50,000, credit sale rupees 1 lakh, purchase asset 20,000, purchase goods in cash 21,000. So this all transaction is of Reliance Industries. This is like a 1 second transaction. Now imagine पूरे दिन में कितने ट्रांजेक्शन होते होंगे. अगर मैं ये ट्रांजेक्शन वन बाय वन एक के नीचे एक रिकॉर्ड करते जाऊंगी, तो क्या ये सही लगेगा? क्या इसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा हो गया? आप बोलोगे यस, इसमें मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी. सो इसी मिस्टेक्स को थोड़ा कवर करने के लिए सी यहाँ पे मैंने लिखा है, इफ वी रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन लाइक वन बाय वन देर इज अ मोर चांसेस ऑफ मिस्टेक. So to record transaction in a proper manner or easily identifiable manner, there is a 5 types of register. So अकाउंटिंग में क्या है, देर इज अ 5 टाइप्स ऑफ रजिस्टर. ये सारे ट्रांजेक्शन को जो है रिकॉर्ड करने के लिए आप सोचो, अगर एक बंदा एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा, सॉरी सी दिस ऑल ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड बाय 1 person और दिस ऑल ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय 5 person. क्या सबसे ज्यादा करेक्ट रहेगा?
करेक्ट कौन सा रहेगा? तो यूड से मैम जो 5% जो है वो रिकॉर्ड करेंगे वो करेक्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर एक बंदा गलती करेगा तो एक ही रजिस्टर में गलती होगा, दूसरे चारों रजिस्टर तो एटलीस्ट जो है वो अच्छे रहेंगे। इसीलिए जो है 5 टाइप्स ऑफ, बेसिकली बहुत सारे टाइप्स ऑफ रजिस्टर होते हैं, बट हियर आई एम एक्सप्लेनिंग यू 5 टाइप्स ऑफ रजिस्टर। तो जो भी ट्रांजेक्शन होगा, जैसे कैश से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ, कैश सेल है, कैश परचेस है, आपने और कुछ चीज़ें कैश में परचेस करी, तो वो सारी चीज़ें जो है ना कैश रजिस्टर में रिकॉर्ड की जाएगी। All the cash related transaction, cash purchase, cash sale, machinery purchase by paying cash, this all transaction has been recorded in the cash register. Now another register is a purchase register. All the credit purchase, all the credit purchase has been recorded in the purchase register. And sale register, in sale register all the credit sale has been recorded. In purchase return register, see, हमने कुछ तो खरीदा, अभी उसमें से हमने 2000 का कुछ तो खरीदा, उसमें से जो है वो 200 की जो चीज़ें हमें पसंद नहीं आई, तो व्हाट वी विल डू, वी विल रिटर्न दिस 200। सो वो जो रिटर्न वाला रिकॉर्ड है, वो जो रिटर्न वाला रिकॉर्ड करने के लिए जो रजिस्टर बनाया जाता है उसे परचेस रिटर्न रजिस्टर कहते हैं। सेम फॉर द सेल्स, हमने किसी को सेल्स किया, सामने वाले बंदे को वो चीज़ पसंद नहीं आई, उसने उसको रिटर्न कर दिया, तो उसका जो है रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए जो बनाया जाता है सेल्स रजिस्टर। तो बेसिकली आप ये सारे ट्रांजेक्शन्स जो है, ये सारे ट्रांजेक्शन को एक के नीचे एक के नीचे एक रिकॉर्ड करेंगे तो ये हौच पौच रहेगा, ये खिचड़ी हो जाएगी और आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे अगर आपका बहुत बड़ा बिजनेस है तो। और ये बेटर है कि 1% रिकॉर्ड करने से अगर हम 5 बंदों को 5 रजिस्टर दे दे, जैसे कि मैंने ये रजिस्टर दे दिया राम, ये दे दिया श्याम, ये दे दिया कुमार, ये दे दिया भरत, ये दे दिया लक्ष्मण, तो क्या होगा, ये सारे जो लोग हैं ये सारे लोग अपना अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। और जैसे जैसे ये उसी चीज में रिकॉर्ड करते जाएंगे तो वो उस चीज में जो है प्रो हो जाएंगे। उससे प्रो, मैं तो एकदम बेस्ट हूँ इस चीज में, तो ऐसी चीज हो जाएंगी। और जो है ये लोग इसमें मिस्टेक्स कम करेंगे, इसीलिए जो है ये सारे ट्रांजेक्शन को वन बाय वन रजिस्टर में हम रिकॉर्ड करते जाते हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। There are 2 types of discount in accounting. Mainly जो डिस्काउंट होता है, 2 types of डिस्काउंट होता है. One is a trade discount and another is a cash discount. Now ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट होता है जब आप बल्क में परचेस करते हो, जब आप बहुत सारी क्वांटिटी में परचेस करते हो, या फिर आप एक स्पेसिफाइड अमाउंट में परचेस करते हो। लेट्स टेक अ वेरी स्मॉल एग्जांपल। नाउ व्हाट हैपन ना, आपकी जो मम्मा है, योर मदर, just a minute, let me draw. Okay, here I will draw. It's you. Okay, this मासूम सा बच्चा is you, and here is your mother, mama, ma. Okay, now what mama tell you कि जा और tomatoes लेके आ। Now what you will do ना, मम्मी ने क्या किया, आपको दे दिए 50 रुपीज। आप क्या करोगे, टमाटर की शॉप में जाओगे, शॉप ऑफ, आई विल राइट हियर टोमेटोज। और क्या होगा, जब आप जाओगे वहां पे तो आप पूछोगे भैया हाउ मच इज टमाटोज फॉर, ही से 25 रुपीज पर केजी। नाउ आप उसको बोलोगे अगर मैं 2 किलो लेता हूँ तो क्या रेट लगेगा, आप पूछते नहीं हो। अगर आपको कुछ लेना है, आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेना होता है या फिर एक स्पेसिफाइड अमाउंट में लेना होता है, अगर आप बोलोगे मैं 50 रुपये का टमाटर लूँगा तो कितना दोगे आप, या आप बोलोगे अगर मुझे 2 किलो टमाटर है तो आप कितना में दोगे। तो वैसे ही होता है, उसी को ही ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। भैया क्या बोलेंगे कि अगर आप 2 किलो के लेते हो तो मैं आपको 20 रुपये पर केजी के हिसाब से टमाटर दे दूंगा।
सो दिस इज व्हाट ट्रेड डिस्काउंट इज। जब आप एक बल्क में परचेस करते हो या फिर आप एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी में परचेस करते हो या आप स्पेसिफाइड अमाउंट में परचेस करते हो तो उसे ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। अनदर एग्जांपल इज फॉर स्पेसिफाइड अमाउंट। जो अपना कस्टमर है या फिर जो अपना वो है, आप अपने कस्टमर को क्या बोलते हो, अगर आप 1 करोड़ के गुड्स परचेस करोगे तो हम आपको 5% का ट्रेड डिस्काउंट देंगे। अगर आप 1 करोड़ से ऊपर 5 करोड़ तक का परचेस करोगे तो हम आपको 15% ट्रेड डिस्काउंट देंगे। अगर आप 5 करोड़ से ऊपर कितना भी परचेस करोगे ना तो आपको हम 20% ट्रेड डिस्काउंट देंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रेड डिस्काउंट। आई होप यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है ना, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कैश डिस्काउंट का भी। से यहाँ पे एक फोन है, जस्ट अ मिनट। नाउ सैमसंग का एक फोन है S24 अल्ट्रा ले लो, ओके, जिसकी प्राइस है 1,25,000 रुपीज़। नाउ क्या होता है ना, शॉपकीपर क्या बोलता है, शॉपकीपर को एक्चुअली में 5,000 का डिस्काउंट मिला होता है, उसने बल्क में परचेस किया होता है, तो इसीलिए क्या करता है वो आपको वो डिस्काउंट बोल के अमाउंट दे देता है ना। वो आपको बोलता है मैम अगर आप इसका इंस्टेंट पेमेंट कर दोगे ना, आज की आज ही आप इसका पेमेंट कर दोगे ना, तो मैं आपको जो है ये फ़ोन पे 25,000 का जो है डिस्काउंट दूंगा। या फिर आप कहीं और जाते हो, से आपने कुछ चीज़ परचेस की, एयर कंडीशनर आपने परचेस किया, अगर आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट करते हो ना तो उसको ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए शॉपकीपर आपको क्या बोलता है, जैसे कि 45,000 का अगर एयर कंडीशनर होगा तो बोलता है आप 40,000 दे दो लेकिन आज की आज पेमेंट करो। ये आज की आज पेमेंट करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है 5,000 का, या फिर जो डिस्काउंट दिया जाता है यहाँ पे 25,000 का जो डिस्काउंट दिया गया, उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। सो कैश डिस्काउंट इज फॉर अर्ली पेमेंट। इफ़ यू पे अर्ली, अगर आपको शॉपकीपर ने जैसे 15 दिन का क्रेडिट पीरियड दिया हो बट आप क्या करते हो जाके 2 दिन में पैसा रिटर्न कर देते हो, तो वो खुश हो जाता है, वाह आपने तो 15 दिन का पीरियड नहीं लिया, जल्दी पैसा दे दिया, चलो 2,000 रुपये आप कम दे दो। दिस इज 2,000 इज कॉल्ड एज कैश डिस्काउंट। सो आई होप यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट ट्रेड डिस्काउंट इज, जो परचेस इन अ बल्क, परचेस इन अ क्वांटिटी और स्पेसिफाइड अमाउंट में होता है, और व्हाट कैश डिस्काउंट इज जो अर्ली पेमेंट के लिए होता है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। मेनी पीपल्स जो होते हैं ना उनको कन्फ्यूजन होता है कि सी मैं ये क्यों क्लियर करवा रही हूँ, आगे जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना उसमें ये सारी चीज़ें आने वाली है, तो जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना आपको रियलाइज होगा हाँ ठीक है ये कॉन्सेप्ट तो हमने ऑलरेडी क्लियर कर लिया। सो एक कन्फ्यूजन होता है, when we purchase furniture we debit the furniture account, but when we purchase goods why we write as a purchase account? See, when we purchase furniture, in last lecture also we have solved entries that we have purchased furniture, so what will be the debited, what is coming in our shop, so furniture is coming, so we debit the furniture, but when we purchase goods, instead of goods account why we debit purchase account? So what happened now, there is this confusion is for many students, so let's clear this confusion is, see my name is Sonali, okay, मेरी जो मम्मा है, my mother call me Sonali, my भैया also call me Sonali, my भाभी also call me Sonali, and my husband also call me Sonali. So there is a one-to-one conversion. I call my mother as a mama, my bhaiya as a bhaiya, my bhabhi as a bhabhi, my husband as a husband. So this all is things are here. So what happened? There is a one-to-one conversion. They know I am Sonali, and I know she is my mama. But what happened with goods na? Goods, we purchase goods, we sell good, we do purchase return for goods और we do sales return for goods. So goods के लिए जो है ना वो बहुत सारे नाम हैं, जैसे मेरे यहाँ पे अगर मेरे बहुत सारे नाम होते तो क्या ये 1-to-1 कन्वर्जन में यहाँ लगा पाती? नहीं लगा पाती। वैसे ही अगर हम गुड्स को, हर गुड्स को गुड्स ही बोलोगे तो आपको कैसे पता चलेगा
कि आपने परचेस किया है, सेल किया है, परचेस रिटर्न किया है या सेल रिटर्न किया है. आई होप यू एबल टू गेट माई पॉइंट कि अगर गुड्स, इफ गुड्स इज देयर, if I am goods, then somebody is, I am selling goods, I am purchasing goods, I am doing purchase return for goods, I am doing sales return for goods. One is a good and there are multiple things related to good. If I am write goods everywhere, then how to identify whether you have purchased goods, you have sales goods, there is a purchase return for goods or there is a sales return for goods. So beta, for that reason only, that we need to understand why there is a goods. For that reason only we write as a purchase account. If we purchase goods, now there we write purchase account. If we sell good, then we write a sale account, just to identify that whether we purchase, whether we sell. So I hope you able to understand this, and there is a no more confusion related to this. Same related to sale of goods also, and same related to purchase return and sales return of the goods also. So I hope you able to understand this. Now let's move further. We'll solve some questions. Okay, so we will solve some questions from ICAS module only. So here is the first questions. I hope this is the first only, right? This is the first only. Okay, so okay, what is the question is, let's read question from beginning. Illustration number 5 from ICAI's module. So what is this? They have written over here, journalize the following transaction, also state the nature of each account involved in the journal entry. They want a nature of each account. I hope you able to get what I mean. Nature means category, personal, whether this account is a personal or this account is a real or this account is a nominal. Okay, so they want category also. So let's go. So first we will write in which book it is. I think it is Ajit's book, right? Okay, we'll write here journal entries. They have not specified name, just I am writing here journal entries. Mainly they write that generalize the following entries in the Ajit book for the year ended this. So we need to write like this all. Okay, so now this column, as we already discussed, this column is a date, this column is for particulars, this is LF ledger folio, this is rupee debit, and this is rupee credit. Okay, now okay, so let's proceed further. What is the first entry? What is the first entry? On December 1st 2022, Ajit started business with capital of 4 lakh. We already seen this entry in last lecture also. So as per double entry system, what two types of accounts are here? First is capital account, that Ajit introduced capital. If capital, that liability side is increasing, then asset side also increase, and it is a form of cash, or I would say bank. So debit, what comes in as per the real account rule, personal account. This is what real account is. Bank account is personal account, don't consider it as a cash. Okay, this is what account is real account, and capital is personal account. So these two accounts are going to affect here, personal and real. And debit, what comes in, क्या business में आ रहा है, will be debited, that is cash, or I would say bank is coming, and capital is going to be credited. So we will write entry word for December 1st 2022 for rupees 4 lakh. So 1st December 2022, what will be the entry?
बैंक अकाउंट डेबिट to capital account for rupees 4 lakh. So what will be the narration? Narration will be being commencement of the business. उसने business start किया है ना. Commencement of the business. Okay, he have started business with capital. So this is done. This is what first entry is. Okay. Now next entry. ये थोड़ा क्रॉस हो गया यार. I don't know how to correct this. Okay, I hope हो गया. ठीक है, चलो. Next entry is, what is the next entry? Second, he withdraw for the business from the bank. Where is my cursor? Okay. Okay, so he withdraw cash for the business from the bank. He withdraw cash for the business purpose only. So बस कॉन्ट्रा एंट्री पास होगी. what कॉन्ट्रा एंट्री विल बी कि उसने कैश विड्रॉ किया बैंक से. तो what happen here ना, सबसे पहले तो दो अकाउंट कौन से है? फर्स्ट इज अ कैश अकाउंट एंड सेकेंड इज अ बैंक अकाउंट. ओके, सो ही विड्रॉ कैश फ्रॉम द बैंक. So cash is a real account and bank is a personal account because bank comes under the person. Okay, so he withdraw cash from the bank. So क्या होगा यहाँ पे? कैश विड्रॉ किया मतलब कैश क्या होगा? डेबिट होगा. रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन. सो और बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा. तो उसने क्या किया? अपने ही खुद के बैंक से जो है कैश क्या किया? विड्रॉ किया. उसको कुछ पैसे चाहिए होंगे, जैसे कि कुछ होता है कि हम कैश में देंगे, तो वो चीज़ के लिए, वो पर्पज़ के लिए उसने बैंक से पैसा विड्रॉ किया. तो बैंक से क्या हुआ? पैसा चला गया बट कैश में पैसा आ गया. सो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश में हमारा पैसा आ गया. सो विल राइट ऑन द December 3rd that cash account debit to bank account. 3rd December 2022, that cash account debit to bank account for rupees 2000. I think it's 2000, right? Okay, so what will be the narration? Being, what he did? He withdraw cash. Being cash withdrawn from business, from bank, sorry. Okay. Okay, so this is what our second entry is. उसने अपने बिजनेस के लिए ही क्या हुआ? बैंक से पैसा निकाल लिया. ओके, सो just a minute, let me draw the line over here. Okay, now next entry. I hope you are able to understand this second entry also कि उसने अपने बिजनेस के लिए जो है पैसा जो है बैंक से लिया. तो ये क्या होगा कि अपना जो है कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया? आप बोलोगे ये कॉन्ट्रा एंट्री पास हो गई. मतलब पैसे से ही इफेक्ट हो रहा है, बस यहाँ से पैसा यहाँ जा रहा है, बैंक से पैसा कम होके कैश में आ रहा है. चलो, लेट्स प्रोसीड फर्दर. नाउ दिस डन एंड दिस डन. थर्ड इज December 5th. He purchased goods by making payment through the bank. अभी क्या हुआ? उसने क्या किया? गुड्स परचेस किया. सो व्हाट वी विल राइट ओवर हियर, एज आई एक्सप्लेन यू कि अगर
हम फर्नीचर परचेस करते हैं तो हम फर्नीचर का अकाउंट लिखते हैं, बट वी हैव परचेस गुड्स ओवर हियर, तो हम गुड्स का अकाउंट नहीं लिखेंगे, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि गुड्स एक ही नहीं होता, सेल भी होता है, परचेस भी होता है, सेल रिटर्न भी होता है, परचेस रिटर्न भी होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट गुड्स परचेस। एंड सेकेंड इफेक्ट क्या होगा कि बाय मेकिंग पेमेंट थ्रू बैंक, सो दूसरा अकाउंट कौन सा अफेक्ट हो रहा है, बैंक, बैंक इज कॉल्ड एज पर्सनल अकाउंट एंड गुड्स परचेस इज नॉमिनल अकाउंट. So what is coming in our business, so purchase, that is goods, is coming in our business, so goods will be debited and this will be credited. So I hope able to understand these two effect of the this transaction or this entry. So on December 3rd we will record the entry that this just a minute, on which date it is, December 5, sorry, December 5. So on December 5 I am writing over here that 5th December 2022, what will be the entry, purchase goods purchase account debit, to what bank account, by paying it from bank na, they have written over here, so we have recorded entry that गुड्स परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. व्हाट विल बी द नरेशन, नरेशन विल बी जो उसने एक्चुअल में किया है वही लिखना है. तो उसने क्या किया है, गुड्स परचेस फॉर द कैश, सो वी विल राइट हियर बीइंग गुड्स परचेस फॉर कैश, मतलब इंस्टेंट पेमेंट देके उसने गुड्स परचेस किया है, ना कि उसने जो है वो क्रेडिट पे लिया है, इसीलिए हमने लिखा दैट गुड्स परचेस बाय यूजिंग कैश. सो लेट्स मूव फर्दर, just a minute, let me draw a line over here. Now what will be the next entry, now we have completed with this also, right? Now on December 8th he sold goods rupees 16,000 and received payment through bank. What two accounts are going to affect, as we already discussed that if sale goods we will write as a what, we will write as a sales account, goods sales account, na ki only goods account. So first account is sales of goods account and what they have written over through bank, so second account is a bank. उन्होंने बैंक से, उनका बैंक में पैसा आया, उसने अपने गुड्स दे दिए और उसका क्या हुआ, सो बैंक में पैसा आ गया. सो bank is categorized as a person, so personal account and this sale account is nominal account. सो डेबिट क्या हो रहा है, तो डेबिट हो रहा है, अपने बैंक में पैसा आया, अपने पास क्या आया, पैसा, अपने पास से क्या चला गया, गुड्स चला गया. तो डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट इज कि पैसा आ रहा है, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट कि हमारे बिजनेस से गुड्स जा रहा है. तो वी विल रिकॉर्ड एंट्री एज अ बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ गुड्स अकाउंट ऑन December 8 फॉर ₹16,000. सो लेट्स रिकॉर्ड इट ऑन 8th December 2022. So write as a bank account debit to sale of goods account for ₹16,000. What will be the narration? Being sold good for cash. कैश इसीलिए लिख रहे हम क्योंकि हमने क्रेडिट पे नहीं दिया है, इंस्टेंट पैसा आया है.
So yes, this is also done. Now okay, let's move further. Okay, now this also completed, right? Now on December 10th he purchased a furniture and paid by check. उसने क्या किया, फर्नीचर परचेस किया और चेक से पे किया. तो what two types of accounts are going to affect here? First account is what is coming in business. Furniture is coming in business, so furniture will be debited. And second is what, they have made a payment through bank, so bank account. So furniture is debit and bank is going to credit, because debit what comes in, हमारे business में furniture आ रहा है, हम उसको debit करेंगे. So furniture is real account and bank is categorized as a person, so bank is a personal account. So what entry will be, that furniture account debit to bank account on December 10th for rupees 2500. Let's record this. 10th December 2022. What will be the entry? Furniture account debit. Just a minute, let me write properly. Furniture account debit to bank account for rupees 2500. What will be the entry is, being purchase of furniture and paid in check. Or you can write over here, paid this by using check. Or you can also write that paid this by using bank, that also possible. Okay, so now that let's move further. This is also completed, so we have completed 5 entries successfully. Now let me rub this, so we'll make a space here to explain more things for you. Just a minute, give me a minute. I hope you are able to understand whatever I am telling. If you have any doubt now guys, please let me know in the comment section below, so I able to solve that doubt, so it will be betterment for you. Or you have any questions related to this or any other topic, please let me know in the comment section below. So what I will do now, I will explain basically you for that topics only. Now let's move further. On December 12th he sold goods to Arvind. Now they have not written over here that कि goods जो है वो हमको कैश में पैसा आया. उन्होंने जो है पर्सन का नाम दे दिया. ये अरविंद की जगह अगर आप वो देते, जैसे उन्होंने ऊपर दिया था कि ही सोल्ड गुड्स एंड रिसीव पेमेंट थ्रू बैंक, सो अभी तक उनको पेमेंट आया ही नहीं है. क्योंकि ये है क्रेडिट में ट्रांजेक्शन. सो मैं ये आपको बाद में क्लियर भी कराऊंगी ये सारे कन्फ्यूजन्स. बट यहाँ पे क्या है कि अरविंद का नाम दिया है. जैसे हमने अरविंद को गुड्स बेचा, इसका मतलब अगर पर्सन का नाम दिया जाता है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ क्रेडिट सेल. सो इट इज़ अ क्रेडिट सेल, क्योंकि उसका नाम दिया गया है, पेमेंट से रिलेटेड कोई डिटेल्स नहीं है, तो वी विल कंसिडर दिस एज अ क्रेडिट सेल. ये हमारा एक अजम्पशन होगा, और यही अजम्पशन जो है वो हर जगह फॉलो होता है. सो प्लीज़ राइट हियर दिस. बाद में मैं ये सारे कन्फ्यूजन्स आपके क्लियर करूँगी. अगर परचेस के लिए भी हम कुछ परचेस करते, से नीचे जो एंट्री दी है वो परचेस रिलेटेड दी है, दैट ही परचेस गुड्स फ्रॉम अमृत. नाउ ही हैव गिवन नेम ऑफ द अमृत, सो वी विल कंसिडर दिस इज ऑल्सो अ क्रेडिट परचेस. हमने उधारी पे खरीदी किया है. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस 6th एंट्री फॉर December 12. What two accounts are here? He sold goods, so sale of goods, right? And second is, who is the
debtors over here. He sold goods. It means Arvind is a debtors. Arvind is a person. So we have to receive money from Arvind. So Arvind is comes under the personal account, and this is what nominal account is. So what happened here ना, we have sold goods. So we have sell goods मतलब हमारे बिजनेस से क्या चला गया, हमारी बिजनेस से जो है वो गुड्स चले गए. तो और अरविंद जी जो है वो हमारे बिजनेस में आ गए. अरविंद का अकाउंट जो है हम क्रिएट कर रहे हैं और हमने उनको जो है क्रेडिट पे गुड्स भेज दिए. तो व्हाट हैपन हियर ना, अरविंद अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ गुड्स अकाउंट for rupees 2400 on December 12th. This entry we will record. So on December 12th December 2022, okay, what will be the entry is Arvind account debit. Arvind is a debtors to sale of goods account. Okay, so for how much? This is for 2400. 2400. What will be the narration? Being sale of goods on credit, because we have sale this goods on credit. Being sale of goods on credit basis. सो आई होप यू एबल टू अंडरस्टैंड कि जहाँ पर्सन का नाम दिया हो वहाँ पे जो है हमें क्या करना है. तो हमें उस पर्सन का नाम दिया है, इसका मतलब हम ये मानेंगे कि वो जो ट्रांजेक्शन है वो क्रेडिट पे हुआ है, चाहे वो गुड्स परचेस हो चाहे वो गुड्स सेल्स हो. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट एंट्री. सो दिस 6th इज ऑल्सो कंप्लीटेड. नाउ 7th एंट्री. सो ही परचेज गुड्स फ्रॉम अमृत. क्या हुआ है, उसने गुड्स परचेज किया है अमृत से. नाउ जैसे मैंने आपको बताया था, अगर पर्सन का नाम दिया गया है तो हम क्या मानेंगे कि हमने जो गुड्स परचेज किया है वो क्रेडिट परचेज किया है. तो दो अकाउंट्स कौन से हैं, एक तो परचेस ऑफ गुड्स अकाउंट एंड सेकेंड इज अमृत अकाउंट. अमृत से हमने खरीदा है, मतलब हमारा जो अमृत है वो कौन हुआ, हमारा अमृत हमारा जो है वो क्रेडिटर्स हुआ. अमृत इज अ नेचुरल पर्सन, सो इट्स कम्स अंडर द पर्सनल अकाउंट एंड परचेज ऑफ गुड्स इज कंसिडर्ड एज अ नॉमिनल अकाउंट. सो व्हाट विल बी द हैपन ईयर ना, कि जो है हमने क्या किया, हमारे बिजनेस में क्या आया, हमारे बिजनेस में गुड्स आया. तो परचेज ऑफ गुड्स अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड व्हाट हैपन, हमें अमृत को देना है तो अमृत विल बी क्रेडिटेड. सो आई होप यू एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बताने जा रही हूँ. तो लेट्स रिकॉर्ड एंट्री ऑन December 14th. For on December 14th, that purchase of goods account debit to Amrit account for rupees 10,000. Let's do it. On December 18th, 18th December 2022, एक टू एक्स्ट्रा हो गया ना मेरे हाथ से, सॉरी. सो व्हाट विल बी द जनरल एंट्री, परचेस अकाउंट डेबिट टू परचेस ऑफ गुड्स. मैं यहाँ लिखूँगी तो ना आपको कंफ्यूजन नहीं होगा. परचेस ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट टू अमृत का अकाउंट, बिकॉज वी हैव परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस एंड नाउ अमृत इज आवर क्रेडिटर्स बिकॉज अमृत को हमें देना है. आई होप you know what is the creditors, what is the debtors. If you don't know, please let me know. I will explain you what all things is. What will be the narration, being purchase of goods on credit basis. सो आई होप यू एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या लिख रही हूँ. ओके,
I hope you are getting my points. Let's move further. Let's close this transaction first. Now, so this is what also completed. Seven general entries also completed. Okay, just a minute. This is done. Now, what is this eighth entry? On December 15th, he returned goods to अमृत. क्या आपको याद है ऊपर जो है उसने परचेज किए थे अमृत से गुड्स? देखो देखो, ये 10,000 जो है, लेट मी एक्सप्लेन ओवर हियर. उसने क्या किया था अमृत से, अमृत जो है अपना, जस्ट अ मिनट, लेट मी राइट प्रॉपरली. ओके, सो यहाँ पे लिखती हूँ मैं. ये जो अमृत है ना, गड़बड़ हो रही है. ये जो अमृत है ना, इससे जो है हमने क्या किया था, परचेज किया था 10,000 के गुड्स. परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000. नाउ ये गुड्स क्या हुआ, हमारी फैक्ट्री में रिसीव हुआ, रिसिव्ड इन फैक्ट्री. सो हमें आने के बाद पता चला यार 500 रुपये का गुड्स जो है ना वो तो डिफेक्टिव है, या और कोई रीज़न हो सकता है. सो क्या हुआ, अमृत से हमने क्रेडिट बेसिस पे गुड्स खरीदा, जिसकी हमने एंट्री भी कर दी थी. नाउ क्या एंट्री करी थी हमने, परचेस ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट टू अमृत का अकाउंट. नाउ व्हाट हैपन ना, 10,000 का गुड्स हमारी फैक्ट्री में आने के बाद हमको पता चला कि भैया 500 रुपये का गुड्स तो डिफेक्टिव है. तो हमने क्या किया, हमने अमृत जी को इन्फॉर्म किया, अमृत जी 500 गुड्स इज़ डिफेक्टिव. सो अमृत जी ने क्या बोला कि हाँ, आप जो है सोनाली जी मुझे गुड्स जो है वापस भेज दो. सो दिस इज़ व्हाट गुड्स रिटर्न इज़. दिस इज़ कॉल्ड एज परचेस रिटर्न. जो हमने परचेस किया था उसको हमने जो है रिटर्न कर दिया. सो जब हमने परचेस किया था तो क्या हमने अमृत का जो अकाउंट है वो क्रेडिट किया था. दिस एंट्री अमृत का अकाउंट क्रेडिट किया है. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि अमृत का जो अकाउंट है ना, बिकॉज अमृत के अकाउंट से ही हमें पैसा कम करना है ना, तो उसको डेबिट कर देंगे. और जो नया अकाउंट बनाएंगे, परचेस ऑफ गुड्स रिटर्न अकाउंट और परचेस रिटर्न अकाउंट. सो व्हाट हैपन ना, नाउ अमृत का जो अकाउंट है पहले क्रेडिट हुआ था, गुड्स आया तो क्रेडिट हुआ, अभी गुड्स जा रहा है तो डेबिट होगा अमृत का अकाउंट, और परचेस ऑफ रिटर्न गुड्स अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा फॉर ₹500. आई होप यू एबल टू गेट माई पॉइंट. सो ऑन December 15th, let's record the entry that अमृत का अकाउंट डेबिट टू purchase of goods return account ₹500. Let's write here. Okay, so which December it is? Sorry, I forgot a date. December 15th. Okay. ओके, ये ऊपर का कुछ तो गड़बड़ है फिर. 15th, लेट मी चेक. पहले एक एंट्री रिकॉर्ड करने दो मुझे. 2022 एंड ये शायद डेट गलत है, लेट मी चेक. 15 December 2022 दैट अमृत का अकाउंट क्रेडिट हुआ था ऊपर वाली एंट्री में. अब हम क्या करेंगे, ये अमृत का नाम ऐसे क्यों आ रहा है यार, AMRIT, अमृत का अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे एंड हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे परचेस रिटर्न, दैट इज गुड्स का परचेस रिटर्न अकाउंट को. हाउ मच, for ₹500. What will be the narration? Narration will be being goods returned to Amrit. Being goods returned to Amrit. So I hope you able to understand कि जब हमने परचेस किया था तो अमृत जो है अपना क्रेडिटर्स है, तो हमने अमृत को क्या किया था, क्रेडिट किया था. लेकिन वही जब हमने उसको रिटर्न किया तो हमें आपकी वैल्यू जो है, हमें उसको देने का जो पैसा है
वो कम करना है, तो 500 से हमने उसका पैसा जो है वो कम कर दिया. सो आई वॉज एबल टू गेट इट. सो इसका डेट क्या था हमें एक बार देखना था ना. ओके, ये 14 डेट था, मैंने गलत लिख दिया, December 14 था ये. सो आई एम सॉरी, ये 18 की जगह ना, दिस इज़ नॉट 18, दिस इज़ 14. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर. Let's come on next entry. That, let me rub this first so I am able to explain you further things. Okay, so now this is also done na, 8 entry. He received from Ardeen 23,000 in full settlement. Now 2,300 in full settlement. Did you remember that we have sale goods on credit to Arvind for 2,400 rupees? क्या हुआ ना, ये जो अरविंद है ना, अरविंद को क्या किया हमने, 2,400 का सेल किया. नाउ क्या हुआ कि अरविंद ने पेमेंट कर दिया. तो अरविंद ने कितने का पेमेंट किया, अरविंद ने 2,300 का पेमेंट किया. लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है पता है, क्वेश्चन इज सेइंग दैट इन द फुल सेटलमेंट. मतलब अभी और पैसा अरविंद से आना नहीं है. अरविंद इज नॉट गोइंग टू पे एनी मोर. जो हमने 2,400 का उसको गुड्स बेचा था, उसका उसने 2,300 पे कर दिया एंड 100 रुपीज़ नहीं पे किया. सो दिस 100 रुपीज़ विल बी कंसिडर्ड एज अ डिस्काउंट, बिकॉज यहाँ पे फुल सेटलमेंट बोला है, इसीलिए हम 100 रुपीज़ को डिस्काउंट मान रहे हैं. अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होता तो हम स्टिल ये मानते कि हमें जो है वो अरविंद से पैसा आना है. सो यहाँ पे क्या एंट्री रिकॉर्ड होगा, देखो ना, कौन से दो इफेक्ट होंगे. ओके, सबसे पहला इफेक्ट होगा कि भैया बैंक से पैसा आएगा. सो डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट द रिसीवर, बैंक से पैसा आया. कौन सा अकाउंट, बैंक इज कैटेगराइज एज अ पर्सन, सो पर्सनल अकाउंट. ओके, नाउ सेकेंड इफेक्ट जो है, ये अपना अरविंद. ओके, ये अपना जो अरविंद है जिसको हमने डेबिट किया था, अभी उसको पहले अरविंद को ना हमने 2,400 से डेबिट किया था. अभी जो है ना, let me rub this first, so I'll explain you very in a proper manner. Okay, so what happened here, please understand guys, what happened here, that कि what happened here कि ये जो अपना अरविंद है ना, इसको हमने 2,400 रुपीज़ का जो क्या किया था, सेल ऑफ गुड्स किया था. अब अरविंद जी ने क्या किया, तो अरविंद जी ने जो है अपने को 2,300 रुपीज़ ही दिया. ओ माय गॉड, कितना दिया, 2,300 ही दिया. अरविंद जी से तो कितना आना था भैया, 2,400 आना था. अरविंद से कितना आना था हमें, 2,400, लेकिन उसने दिया कितना, 2,300. अभी हमारे रूल के अकॉर्डिंग डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, बट हियर क्या डेबिट क्रेडिट मैच हो रहा है, जी नहीं हो रहा है. इसीलिए हम क्या करेंगे, 100 को डिस्काउंट कंसिडर करेंगे, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन ने लिखा है इन फुल सेटलमेंट. अगर ये फुल सेटलमेंट नहीं लिखा होता ना, तो अभी भी हम मानते कि अरविंद से अभी भी हमें 100 रुपये आने हैं. तो क्या यहाँ पे पहले क्या होता था कि डेबिट साइड में हमारे 2,300 हो रहे थे और क्रेडिट साइड में हमारे हो रहे थे 2,400. डेबिट इज़ नॉट इक्वल टू क्रेडिट. सो बट अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग रूल, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट और every debit has equal and opposite credit. So according to this rule we are going to record the entry that bank account debit. So देखो अभी डिस्काउंट अकाउंट क्या होगा, आप बोलोगे डेबिट. यस परफेक्टली बेटा, बिकॉज हमें क्या करना है, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 100 डाल दिया. तो अब ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा. सो दिस डेबिट एंड
पहले हमारे अरविंद जी को हमने डेबिट किया था, अभी हम अरविंद जी को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, अरविंद का अकाउंट पहले डेबिट हुआ, अब क्रेडिट हुआ, कट कट हो गया, अरविंद का अकाउंट जो है वो क्लोज हो गया। सो लेट्स रिकॉर्ड दिस एंट्री ऑन December 16th, दैट कि बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू अरविंद का अकाउंट। लेट्स रिकॉर्ड दिस एंट्री। सो 16th December 2022, एक 2 मैंने ज़्यादा लिख दिया, आई एम सो सॉरी, दैट कि बैंक अकाउंट डेबिट, हमें बैंक से पैसा आया, ओके ना। बैंक अकाउंट डेबिट हाउ मच, उसने ओनली 2300 ही दिया। हमने जैसे देखा तो हमने डिस्काउंट को क्या मान लिया, हमने 100 का क्या मान लिया, आई एम सॉरी, आई एम 100 का मान लिया डिस्काउंट। सो 100 विल बी डिस्काउंट टू अरविंद का अकाउंट। अरविंद ही है ना वो, राइट, अरविंद। कितना, 2400। जस्ट अ मिनट। So what will be the narration? Being amount received, being amount received from Arvind, आपको डिटेल में नरेशन लिखना है, ठीक है ना, इन फुल सेटलमेंट and allowed him discount of ₹100. Okay, okay, fine, perfectly fine. Now let's move further. Okay, just a minute, गलत हो गया ना कुछ तो। Let me draw this once again. So okay, now perfect. Ignore guys, यहाँ वहाँ हो रहा है तो ये ड्रॉ करने में, ओके ना। Now this is also done. Now on December 18, he withdraw goods for personal use for ₹1000. उसने क्या किया, that कि अपने बिजनेस से, जैसे कि से उसका कुछ स्टेशनरी का बिजनेस होगा, मान लो जैसे कि मेरा स्टेशनरी का बिजनेस है, तो मैंने क्या किया, मेरे घर के लिए, मुझे अपने फैमिली के लिए जो क्या करना था कि 10,000 का जो है क्या करना था, गुड्स विड्रॉ करना था, स्टेशनरी लेना था। तो अपनी दुकान है तो मैं तो अपनी दुकान से उठा के लूँगी। अगर आप भी सोचो, अगर आपके पापा की कुछ दुकान है, जैसे आपके पापा की कुछ पेन या बुक्स की दुकान है, तो आप क्या करते हो, डायरेक्टली जाके दुकान से सामान लेके आते हो ना। वैसे ही उसने किया होगा, तो अपने ही दुकान से अपने घर के लिए जो है वो गुड्स यूज किए, तो दिस विल considered as a drawings. So what will be the general entry of this, or what two accounts are going to affect this here? First is drawings account, उसने draw किए, and second is a purchase of goods account. गुड्स जो परचेस हो रहे थे उसमें ही करने उसने पर्सनल अकाउंट। सो व्हाट विल बी द डेबिटेड एक्सपेंसेस, जो है वो सारे डेबिट हो जाएंगे, मतलब ड्राइंग्स। और व्हाट विल बी द क्रेडिटेड गुड्स, सारे क्रेडिट हो जाएंगे। क्या आ रहा है बिजनेस में, ड्राइंग्स, और क्या जा रहा है हमारे बिजनेस से, क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है, तो हम गुड्स को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। सो ऑन December 18th हम एंट्री करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस ऑफ गुड्स अकाउंट। ऑन December 18th, okay, I am writing over here that 18th December 2022, drawings account debit
to purchase of goods. How much for it is? It is 1000 rupees. What will be the narration? Narration will be being goods withdrawn for personal use. I hope you able to get what I am telling you. Please, if you have any query, please let me know in the comments below. I will explain you. अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड भी कुछ क्वेरी है तो प्लीज़ लेट मी नो. अरे यार ये कैसे हो गया, इसका नरेशन थोड़ा सा गलत हो गया ना. जस्ट अ मिनट, इरेजर लेना पड़ेगा हमें और इसको मैं ठीक कर देती हूँ, ठीक है ना. ऐसे क्यों हो गया पता नहीं चला मुझे. एक सेकेंड. ओके, बीइंग गुड्स withdrawn for personal use. ओके प्लीज़ ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो, यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मुझे. नाउ लेट्स मूव फर्दर. दिस इज ऑल्सो डन. ओके, नाउ नेक्स्ट एंट्री इज, जस्ट अ मिनट. ओके, नेक्स्ट एंट्री इज ही विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज. पहले उसने क्या विड्रॉ किया था? पहले उसने गुड्स से विड्रॉ किया था. अभी उसने क्या विड्रॉ किया? अभी उसने क्या किया? कैश ले लिया. तो सेम एंट्री होगी, बस जहाँ पे गुड्स था वहाँ पे क्या होगा? कैश होगा. तो कैश क्या होगा? कौन सा अकाउंट है? सॉरी, मैं अकाउंट डालना तो भूल गई. कैश है रियल और जो ड्राइंग्स है वो पर्सनल है. ओके, सो ड्राइंग्स अकाउंट क्या होगा? जैसे पहली एंट्री थी सेम एंट्री है, कोई उसमें चेंजेस नहीं है, बस जो गुड्स थे उसकी जगह कैश है. तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश ऑन December 20 will record as a drawings account debit to cash. He withdraw cash from business for personal use. Okay, now 20th December 2022, that drawings account debit टू कैश अकाउंट. कैश हमारे बिजनेस से क्या हो रही है? जा रही है. कितने से? ₹2000. ओके, सो व्हाट विल बी द नरेशन? नरेशन विल बी बीइंग कैश withdrawn from business for personal use. ओके, ये ऐसे क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है मुझे. फॉर यहाँ पे होना चाहिए ना. ओके, लेट्स मूव फर्दर. ये भी हो गया. ओके, now on 24th December he paid telephone charges. What two types of accounts are here? Okay, सबसे पहले तो टेलीफोन चार्जेस, एंड सेकेंड दिया नहीं है तो हम मानेंगे कि बैंक से ही पे करे हैं. ओके, सो टेलीफोन चार्जेस इज नॉमिनल अकाउंट. एक्सपेंसेस है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड इट इज़ अ पर्सनल अकाउंट. बिजनेस से क्या जा रहा है? पैसा जा रहा है, तो इट विल बी क्रेडिटेड.
So we will write over here that on December 24, telephone charges account debit to bank account. Okay, so 24th December 2022, telephone charges account debit to bank account. How much? 110 rupees. Bing, telephone charges paid. Bing, telephone charges paid. That's it. Okay, let's move further. Let me close the entry. Okay. Just a minute. अरे ऐसे क्यों हो रहा है ये? Okay, I hope you able to get what I am telling you or what I am trying to deliver you. Now on December 26, amount paid to Amrit in full settlement. Now guys, can you remember? Just a minute, ये सब मैं रब करके मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी यहाँ पे हुआ क्या है. So just a minute. Just a minute. मैं एकदम अच्छे से आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है. what will be the entry or what will be the transaction is amount paid to Amrit in full settlement. क्या आपको रिमेंबर, आपको याद है हमने अमृत से गुड्स परचेस किए थे ऑन December 14th. हमने अमृत से गुड्स परचेस करे थे. डिड यू रिमेंबर दिस? Did you remember this that we have purchased goods from Amrit for rupees 10,000? क्या आपको याद होगा? सी हमने 14th of December को एंट्री किया था परचेस ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट टू अमृत अकाउंट. हमने क्या एंट्री पास किया था? दैट की परचेस ऑफ गुड्स, हमारे इसमें गुड्स आए और हमारा जो डेटार है वो कौन है? हमारा अमृत है. फॉर रुपीज़ 10,000. नाउ व्हाट हैपन ना, हमने अमृत से जो है, हमने अमृत को 9,450 रुपीज़ दिया ओनली. क्यूएस सॉरी, हमने अमृत से कितने के परचेज किए थे? ओके 10,000 के किए थे. बाद में 500 जो है उसको फिर से डेबिट किए. क्या याद है आपको? जैसे देखो, सबसे पहले हमने अमृत से 10,000 का परचेस किया था. ओके. ना उसमें से हमने क्या किया? रिटर्न कर दिए गुड्स. रिटर्न गुड्स कितने के? 500 के. अभी हमें अमृत का कितना देना बचता है? 9,500. नाउ क्या होगा? देखो, अभी हमें अमृत का 9,500, मैं यहाँ पे 9,500 ही लिखूंगी आपका कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए. ठीक है ना? आपको वो एंट्री तो पता है ना जो हमने परचेस रिटर्न वाली पास की थी. तो मैं यहाँ पे 9,500 लिखूंगी बिकॉज हमें क्या है, अभी 9,500 ही देने हैं. हमने क्या किया उस 9,500 से 9,450 दिए. फिर 50 रुपीज़ हमको डिस्काउंट मिल गया. सिंपल. जैसे हम किसी को डिस्काउंट देते हैं तो कोई हमें भी तो देगा ना. सो व्हाट वी विल डू,
पहले हमने क्या किया था, दैट अमृत का जो अकाउंट है वो क्रेडिट किया था, तो हम क्या करेंगे, अभी अमृत का अकाउंट जो है वो डेबिट करेंगे। अमृत डेबिट हो गया, ठीक है। अभी और क्रेडिट क्या होगा भैया, क्रेडिट होगा बैंक। बैंक क्यों क्रेडिट होगा, बिकॉज हमारी ओर से पैसा जा रहा है, हमारी ओर से क्या जा रहा है, हमारी ओर से पैसा जा रहा है। तो व्हाट हैपन ना, टू मेक अ डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल इज, बैंक को हम 9,485 दे रहे हैं, 50 रुपीज़ का हम क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, और हम अमृत को हमें देना कितना था, 9,500। सो आई होप यू एबल टू क्लियर दैट कि हमने 10,000 अमृत से परचेज किया था, उसमें से हमें कुछ गुड्स खराब लगे तो हमने 500 रुपये का रिटर्न कर दिया। अभी हमें उसको बस 9,500 ही देना है, उसमें से भी हमने क्या किया, 9,450 रुपीज़ ही दिया, बिकॉज हम ऐसा मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है देखो फुल सेटलमेंट, जिसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था। अगर फुल सेटलमेंट लिखा है ना, तो ये मान जाना कि अभी हमें कुछ नहीं देना है। अगर यहाँ पे नहीं लिखा होता ना फुल सेटलमेंट, तो हम मानते कि 50 रुपये अभी भी हमें देना बाकी है, बट यहाँ पे क्योंकि फुल सेटलमेंट लिखा है तो हम इसको डिस्काउंट मानेंगे। सो लेट्स रिकॉर्ड एंट्री ऑन December 26 दैट अमृत अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। Okay, so let's record 26th December 2022 that कि अमृत का अकाउंट डेबिट, अमृत अकाउंट डेबिट, ओके, टू बैंक अकाउंट, हमने कितने दिए थे बैंक से, 9,450, टू डिस्काउंट अकाउंट, बिकॉज फुल सेटलमेंट में दिया है, इसीलिए हमने मान लिया कि ये जो 50 रुपया है ना, ये डिस्काउंट ही है। कितना देना बाकी था, 9,500। नाउ बीइंग कैश पेड टू अमृत, narration will be being cash paid to Amrit on Amrit, and he allowed ₹50 as a discount. देखो गाइज, आप नरेशन जितना क्लियर रखोगे ना, या फिर आप जितना अच्छे से लिख पाओगे ना, ट्राई करना उतना अच्छे से एग्जाम में लिखने का, बिकॉज यस, ये नरेशन देखते ही पता चलना चाहिए कि अच्छा ये जो ऊपर वाला ट्रांजेक्शन है इसकी ये एंट्री है। सो लेट्स मूव फर्दर, दिस इज ऑल्सो डन नाउ। नाउ ऑन December 31st, paid for stationery ₹200, rent ₹5,000, and salaries to staff ₹2,000 from the bank. Now debit all expenses and losses, because I am going to tell you here that this all is nominal account, because this all is expenses. Stationery हमारा क्या है, खर्चा है भैया, रेंट हमारा क्या है, खर्चा है, सैलरीज हमारा क्या है, खर्चा है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को क्या कर दो, डेबिट कर दो। सो हमारा जो स्टेशनरी है ये डेबिट हो जाएगा, हमारा रेंट है डेबिट हो जाएगा, सैलरीज है डेबिट हो जाएगा। हम एक ही एंट्री में ये सब पास करेंगे, बिकॉज सेम ही डेट का है, वो मैं आपको दिखाऊंगी फ्रॉम द बैंक। सो 2,000 प्लस 5,000, 7,000 प्लस 200, 7,200 का बैंक से हम एंट्री पास कर देंगे। सो लेट्स रिकॉर्ड दिस एंट्री ऑन December 14th, सॉरी December 31st, on 31st December 2022, 31st December 2022, what will be the entry, stationery account debit, स्टेशनरी एक्सपेंसेस डेबिट, कितने के थे स्टेशनरी, 200, ओके। नेक्स्ट इज रेंट एक्सपेंसेस, और आई वुड से रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट का अकाउंट बनाएंगे हम, ऊपर का क्यों चला गया, कितने का था रेंट, जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट, व्हाट्स गोइंग ऑन दिस,
अरे ये क्या हो रहा है, जस्ट मिनट, बहुत देर से चल रहा है इसलिए प्रॉब्लम दे रहा है शायद. ओके, लेट मी रेज दिस. अरे रेज भी नहीं हो रहा है, ओ माय गॉड. ओके हम क्या करेंगे, ओके हो चला गया. दिसंबर 31 2022 स्टेशनरी expenses debit. ओके रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट. थर्ड था क्या था, सैलरीज, सैलरीज अकाउंट डेबिट. सो ओके स्टेशनरी थी 200 की, आई थिंक रेंट था 5000 का और सैलरीज थी 2000 का. ये सारा पैसा कहाँ से गया, टू बैंक अकाउंट. कितना था, 7000. इसका टोटल होता है 7. तो आप एक मिक्स्ड एंट्री भी पैसे पास कर सकते हो. बिंग, मैं यहाँ पे नरेशन लिखूंगी, बिंग एक्सपेंसेस पेड. सो आई होप यू एबल टू गेट दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ गया होगा कि मैंने कैसे किया, क्या किया. अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट हो ना तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस बिलो. Okay, this entry is also done. Now coming over to last entry. Goods distributed by way of a free sample. Now, goods distributed by way of a free sample means क्या है, advertisement कर दिया हमने. तो debit all expenses and losses is nominal account. So advertisement का account क्या होगा, debit होगा. और हमने distribute किया तो हमारा क्या गया, परचेस अकाउंट. और आई वुड से परचेस ऑफ गुड्स अकाउंट, परचेस ऑफ गुड्स अकाउंट विल बी नॉमिनल अकाउंट. सो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट on December 31st. Let's record this last entry. So 31st, just a minute, 31st December 2022 we have did free sample. So it is free sample is advertisement expenses debit to purchase account. हमने जो गुड्स परचेस किए उसमें से ही गए होंगे ना. परचेस अकाउंट कितने का, ₹2000 का. व्हाट विल बी द नरेशन, नरेशन विल बी being distribution of goods by way of free sample, being distribution of goods by way of free samples. Okay, so guys, this questions has been done. ये एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन था तो ये ख़त्म हो चुका है. नाउ आपको आई होप समझ में आ गया हो कि ये 2000 है. ओके ना, ये ऐसे क्यों हो रहा है पता नहीं चल रहा है मुझे. ये 2000 है. ओके ना. सो आई होप यू एबल टू गेट दिस क्वेश्चन. इसमें हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट भी सीखे कि फुल सेटलमेंट में देना है मतलब क्या करना है, अगर हम परचेस करते तो कैसे एंट्री पास होता है. हमने इसका नॉर्मल परचेस भी देखा जो बैंक से होता है, हमने क्रेडिट परचेस भी कैसे होता है वो सब सीखा इसमें. सो जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिस्कस करूँगी बिकॉज नाउ अभी बहुत टाइम हो गया है. इलस्ट्रेशन नंबर 7 फ्रॉम ICAI मॉड्यूल हैज़ बीन डिस्कस्ड ऑन नेक्स्ट लेक्चर. और ये होने के बाद मैं आपको GST की जो जनरल एंट्रीज है वो भी बताऊंगी ऑन नेक्स्ट लेक्चर की GST की जनरल एंट्रीज कैसे पास होती है और GST का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे GST आया, वो सब चीज़ें मैं बहुत बेसिक जो है GST में बहुत डीप जाके नहीं सिखाऊंगी. जितना आपको अकाउंट से रिलेट करता है उतना ही सिखाऊंगी बिकॉज GST जो है वो आप आगे जब एंटर में जाओगे वो आप एकदम डीपली सीख जाओगे. So I hope you able to understand this guys.
अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है आप प्लीज़ कमेंट्स कर देना, मैं आपका एकदम डाउट क्लियर कर दूंगी. So here I am ending up this lecture. Thank you so much. Thank you guys. Bye bye.